آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین اور دوستو، آج کی کلاس ہے افسانہ نگاری پری، اور جس میں ہم آج پڑھائیں گے حیات اللہ انصاری کا افسانہ کوشش۔ کوشش کا خلاصہ بھی بتائیں گے، کوشش کے کردار بتائیں گے، اور کوشش کے علاوہ اور بھی کچھ ٹائم ملا تو اس میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو بتائیے، کیا کوشش ہی پڑھائی جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں، آج آپ اس میں چغتائی کا چوتھی کا جوڑا پڑھائیے۔ اس میں چغتائی کا چوتھی کا جوڑا، چوتھی کا جوڑا یہ افسانہ ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ چوتھی کا جوڑا جو افسانہ ہے وہ اس میں چغتائی کا پڑھا دیں تو بہتر ہے، اور یہ ہمارے سلیبس میں بھی ہے، کورس میں بھی ہے۔ تو اس میں چغتائی کا جو افسانہ ہے وہ یقیناً بڑا دلچسپ افسانہ ہے ان کا، اس میں چغتائی کا۔ اور اس میں چغتائی بدایوں میں پیدا ہوئیں اور بمبئی میں انتقال ہوا تھا۔ 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، اور ایک کا نام رکھا تھا سیما اور دوسری کا نام منی رکھا تھا، اور شاہد لطیف سے انہوں نے شادی کری تھی۔ اور اس میں چغتائی کی یہ خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی تھی کہ مجھے ہندو رسم و رواج کے مطابق جلایا جائے۔ تو ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے مطابق ممبئی میں چندن واڑی میں نظر آتش کیا گیا، ان کو جلایا گیا۔ اسی طرح نور میم راشد بھی ہیں، انہوں نے لندن میں وصیت کر دی تھی کہ مجھے جلا دیا جائے، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں معلوم کہ جلایا گیا ہے۔ خیر، ہم اس میں چغتائی کو پڑھ رہے ہیں۔ ان کا بچپن کا نام تھا چنی بیگم، جو اس کو عرفیت بھی کہتے ہیں، اور عصمت چغتائی ان کا قلمی نام تھا، اور اسی نام سے وہ اردو ادب میں جانی جاتی ہیں۔ بہت سے افسانے لکھے۔ کافر لکھا انہوں نے افسانہ، جو ان کا سب سے پہلا تبادات افسانہ ہے، 1938 میں لکھا۔ سب سے پہلا انہوں نے ایک لکھا تھا مضمون بچپن کے نام سے، کافر تبادات افسانہ ہے ان کا پہلا۔ اور ان کی کئی کہانیاں ایسی ہیں جو متنازع رہی ہیں، یعنی کہ ان پہ تنازع رہا ہے اور مقدمے چلے ہیں، FIR ہوئی ہے، اور کورٹ میں بھی جانا پڑا تھا ان کو، جس میں ایک لحاف لکھا تھا۔ لحاف پر مقدمہ بھی چلا اور وہ عدالت میں بھی گئیں، اس پر مقدمہ بھی جب چلایا گیا تو گواہی بھی ہوئی۔ خیر، اس سے بھی وہ بری ہو گئیں۔ چوتھی کے جوڑے سے پہلے ہم اور آپ کو بتا دیں کہ ضدی ان کا سب سے پہلا ناول ہے۔ ضدی 1941 میں لکھا تھا، اور 1942 میں وہ منظر عام پر آیا۔ ضدی جو لکھا تھا انہوں نے 4 اپنی سہیلیوں کو ملا کر، جب 4 سہیلیوں کو بلایا تھا انہوں نے، اور اس پر جو کہانی لکھی تھی، اور جب وہ ناول تیار ہو گیا ضدی، تو اس کو فروخت کیا۔ 5 نے 20-20 روپے بانٹے، تو یہ 100 روپے میں وہ ناول فروخت ہوا تھا ضدی۔ اس طرح سے انہوں نے 13 ناول لکھے تھے۔ آخری ناول ان کا جو تھا وہ تھا کاغذی پیرہن، جو ان کا ایک سوانح عمری بھی تھی۔ تو آئیے، ٹیڑھی لکیر بھی ان کا بہت مشہور ناول ہے، اور ٹیڑھی لکیر میں سمن اس کا کردار ہے۔ لیکن ہم چلتے ہیں ان کے افسانوی مجموعے کی طرف۔ افسانوی مجموعے جو انہوں نے لکھے ہیں، افسانے کون کون سے لکھے ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے۔ کلیاں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، جس میں 13 افسانے، 1941 میں یہ چھپا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے 10-11 افسانوی مجموعے شائع کیے ہیں، اور کافر ہے، ساس ہے، اور خریدار ہے، لحاف ہے، نفرت ہے، بہت سارے افسانے لکھے ہیں عصمت چغتائی نے۔ ان کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ ہے، انہوں نے فلمیں بنائی تھی۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں افسانہ چوتھی کے جوڑے کی طرف۔ پھر یہ بتائیں گے کہ چوتھی کے جوڑے کے بعد میں ان کے ادبی خدمات کے صلے میں کون کون سے انعامات ملے تھے، وہ بھی ہیں۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ آئیے دوستو، ناظرین، اور شروع کرتے ہیں چوتھی کے جوڑے کا خلاصہ۔ تو ذرا آپ ذرا سا پڑھ کر بتائیے چوتھی کے جوڑے کا خلاصہ کیا ہے عصمت چغتائی کا۔ چوتھی کا جوڑا ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جس کی سربراہ بی اماں ہیں، اور جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد خاندان کی کفالت کر رہی ہیں۔ ان کی 2 جوان لڑکیاں کبریٰ اور حمیدہ ہیں۔ بی اماں کا سب سے بڑا مسئلہ کبریٰ کی شادی کا ہے۔ کبریٰ معمولی شکل و صورت کی، ڈری سہمی سی خاموش طبیعت کی لڑکی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے لیے پیغام، یعنی کہ شادی کے لیے رشتے آنے بند ہو گئے تھے۔ بی اماں کبریٰ حمیدہ کی
माँ की सारी उम्मीदें इस वक्त जाग उठती हैं जब उनके मंझले भाई का लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में उनके घर क़याम करता है। वो अपना जेवर तक बेच कर घर ठीक करती हैं और राहत के रहने का इंतज़ाम करती हैं। इसकी खातिर तवाज़े के लिए खुद रूखा सूखा खाकर राहत को मज़ेदार खाने खिलाती हैं। जब राहत से इसकी रजामंदी ज़ाहिर नहीं होती तब भी अम्मा उनकी मुँह बोली बहन ये तय करती हैं कि हमीदा राहत से हंसी मजाक करे। बी अम्मा का यह नुस्खा कारगर होता है और राहत ज़्यादा वक्त घर पर गुजारने लगता है। वो हमीदा को छेड़ता है और गलत नज़रों से भी देखता है। हमीदा अपनी बहन की खातिर ये सब बर्दाश्त करती है। राहत की दस्त दराजियाँ बढ़ती जाती हैं। बी अम्मा और उसकी मुँह बोली बहन बहुत खुश होती हैं कि अब बात बन जाएगी, लेकिन राहत ना कुछ कहता है और ना उसके घर से पैगाम आता है। आखिरकार बी अम्मा मुश्किल कुशाई नयाज दिलाती हैं। कुबरा शर्मा कर मच्छरों वाली कोठरी में बैठ जाती है। लड़कियां इसे छेड़ती हैं। कुबरा मौलवी साहब का दम किया हुआ मलीदा हमीदा को देती है और वो राहत को खिलाए। हमीदा मुकद्दस मलीदा लेकर राहत के कमरे में जाती है और कांपते हाथों से मलीदा का निवाला राहत के मुंह की तरफ बढ़ाती है। एक भूचाल सा आता है। हमीदा राहत की होश का शिकार बन जाती है। इस तरह राहत 3 जिंदगियां तबाह करके सुबह की गाड़ी से अपने घर लौट जाता है, क्योंकि उसकी शादी की तारीख पहले से कहीं और तय हो चुकी थी। कुबरा दिक का शिकार होकर मर जाती है। बी अम्मा जो चौथी का जोड़ा बुनने में माहिर थी, उनके सामने कफन का लट्ठा फैल जाता है। इनके गालों पर मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं और उन्हें महसूस होता है जैसे कुबरा का जोड़ा तैयार हो गया है। बहुत सही, हाँ बहुत अच्छा। आपने ये अभी चौथी का जोड़ा पढ़कर जो सुनाया है, इससे आपको क्या समझ में आया? और ये जो लड़कियों की शादी होती है, उनके जो रिश्ते आते हैं, तो उनके रिश्ते आने में जो रुकावट होती है और इसमें वालिदैन जो है तो किस कदर क्या ना परेशान रहते हैं कि अच्छे अच्छे रिश्ते मिलें, लेकिन मौका ऐसा आ जाता है कभी कभी कि और तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। जी, तो मैंने ये समझा इस अफसाने से कि एक वालिद के जाने के बाद एक घर में कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं जी, उनकी मदर को, उनकी दोनों बेटियों को, और वो रिश्ते के लिए कितनी जद्दोजहद करती हैं हाँ कि एक रिश्ता अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता आ जाए, लेकिन वो लड़का आता भी है और वो बात और नहीं माँ बनती। जबकि पूरे मोहल्ले की लड़कियों के वो जोड़े तैयार करती हैं शादी हाँ, के हैं, हाँ। और अपनी बेटी के लिए जो तैयार करके रखा था उन्होंने, और वो उनके काम में नहीं आया और उनकी बेटी का इंतकाल हो जाता है तो कफन आ जाता है। तो ये कैसा क्या नाम है, बहुत इमोशनल स्टोरी है कि मतलब एक माँ जो दूसरों की लड़कियों के लिए दुपट्टे तैयार करती है और अपनी बेटी की जब बारी आती है तो वो दुपट्टा कफन में तब्दील हो जाता है कि उसको कफन पहनाना पड़ता है। तो ये इसमें चुगताई का अफसाना जो चौथी का जोड़ा है, इससे आप मुतासिर हैं? क्योंकि ये आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में ये सब चीज़ें हो रही हैं कि लड़कियों के रिश्ते जो हैं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसमें चुगताई ने ये कहानी जो लिखी, अफसाना लिखा है, तो ये हकीकत पर मबनी है ना? ये तो आजकल जो दौर में हो रहा है, ज़माने में हो रहा है, यही बातें हो रही हैं। लोग यानी कि धोखाधड़ी दे रहे हैं शादी के मामले में, है कुछ नहीं और बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि हमारा ये कारोबार है, वो कारोबार है, इस तरीके से कारोबार भी अपना बड़ा चढ़ाकर राहत बताते था हैं। वो उनकी बेटी को धोखा देता है और वो उम्मीद बांधे बैठती हैं कि नहीं वो मेरी बेटी से शादी करेगा, लेकिन वो शादी नहीं करता, वो दूसरे दिन भाग जाता है। राहत जब आ जाता है उनके घर में तो ये खुशी की लहर दौड़ती है कि मेरे घर में घर बैठा दामाद आ गया है। वो ये सोचती है घर बैठे दामाद आ गया और अब ये रिश्ता मेरी लड़की के लिए पक्का हो जाएगा। और अच्छे अच्छे उन्होंने पकवान भी करे, अपने आप को रूखी सूखी भी खाई, अपने आप को रूखा सूखा खिला के अपने आप, वो एक मच्छर के जिस कमरे में मच्छर थे वो उसमें जो कुबरा उनकी बेटी थी वो खुद रहती है और उनको अच्छे कमरे में अच्छे बिस्तर पे सुलाती है ताकि वो मुझे पसंद कर ले, लेकिन फिर भी वो पसंद नहीं करता। बाद में ये पता चलता है कि उसका रिश्ता कहीं और हो चुका होता है। हाँ, तो ये एक धोखा देना हुआ। कितनी तकलीफ दे बात है, किस तरीके से ये धोखा देते हैं आजकल। और देखिए चौथी का जोड़ा आज भी हकीकत पर मबनी है और पुराने ज़माने में भी ये हकीकत पर मबनी था और आज भी इसको इसी दौर में बिल्कुल सच्चाई के
रूप में देखा जा रहा है और चौथी का जोड़ा। अब चलिए ये तो चौथी के जोड़े का खुलासा आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया और नाज़रीन आपकी भी समझ में आ गया होगा। चौथी का जोड़ा अफसाने का जो मरकज़ी किरदार है, जो सरबराह हैं, वो बी अम्मा हैं। तो बी अम्मा की दोनों बेटियों के नाम क्या हैं और इस अफसाने में बी अम्मा का क्या किरदार है? बी अम्मा नाम था और उनकी दोनों बेटियों का नाम कुबरा और हमीदा। कुबरा बड़ी थी और हमीदा जो थी छोटी थी, है नहीं। कुबरा और हमीदा दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन शक्ल सूरत में वो ज़्यादा, हाँ कुबरा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो उसके रिश्ते के लिए ज़्यादा परेशान रहती थी। बी अम्मा को कब खुशी का ये एहसास हुआ कि मेरे घर में एक वो आ गया है, लड़का आ गया है जिससे कि अब रिश्ता हो जाएगा मेरी बेटी कुबरा का, तो वो कौन था और उनका ताल्लुक़ क्या था? मजले भाई का बेटा था, राहत था। हाँ बिल्कुल सही। चौथी के जोड़े अफसाने के मरकज़ी किरदार कौन कौन से हैं? बी अम्मा, कुबरा, हमीदा और राहत। चौथी के जोड़े अफसाने के अलावा इसमें चुगताई के 2 मशहूर अफसानों के नाम बताइए। हम लोग और लिहाफ जो है वो बहुत मशहूर अफसाने हैं। हाँ। इसमें चुगताई के बहुत मशहूर अफसाने हैं और इसी पर ही इनका मुकदमा भी चला था, ठीक है, लिहाफ पर। नाज़रीन अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दीजिएगा, तो हम आपकी वीडियो जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके सवाल का जवाब भी देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। इसमें चुगताई के नावल और चौथी का जोड़ा अफसाने के साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।